ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کو نم آنکھوں کے ساتھ، دکھ بھرے جذبات کے ساتھ، درد بھرے جذبات کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر موجود رہا۔ آپ کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نہ صرف ریاست کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں سے بھی لوگ یہاں پر پہنچے اور آپ کا آخری دیدار کیا اور آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ سدھرامیہ، کیبنٹ منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان، کے جے جارج، شیواجی نگر کے ایم ایل اے رضوان ارشد، چیف وپ اور ایم ایل سی سلیم احمد، میسور کے ایم ایل اے تنویر سیٹھ، کے پی سی سی کے وائس پریزیڈنٹ عبید اللہ شریف، ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین ذوالفقار احمد خان ٹیپو اور بھی کئی اہم شخصیات نے یہاں شرکت کی اور حضرت امیر شریعت کا آخری دیدار کیا اور آپ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مولانا صغیر احمد رشادی کے بڑے فرزند قاری زبیر احمد رشادی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جی ہاں، مولانا قاری زبیر احمد رشادی نے اپنے والد محترم ریاست کرناٹک کے امیر شریعت دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم مولانا صغیر احمد رشادی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل ریاستی حکومت کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جی ہاں، ریاستی حکومت نے اعزاز پیش کرتے ہوئے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کو الوداع کیا۔ دوستو، اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے باہر اور اندر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت امیر شریعت کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اعزاز پیش کیا گیا اور اس کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں ہی آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆರಿಸಿ ಪುನಃ ತುಂಬಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆರಿಸಿ جی علی صاحب اجازت لینا کچھ بولنا۔ ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بات ہے ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی اب ہمارے درمیان نہیں رہے. کل فجر 5:30 بجے فجر کے اذان کے وقت پہ ان کا انتقال وغیرہ سن کے بہت دکھ ہوا. 15 دن پہلے جا کے میں دیکھ کے آیا تھا. طبیعت جب ناسا تھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تھے میں جا کے دیکھ کے آیا تھا. 2 دن پہلے معلوم پڑا کہ طبیعت تھوڑا بہتے رہے, تھوڑا اشارے میں بات کر کے اچانک سویرے 5 بجے اذان کے وقت ان کا دیہانت ہو گیا. ہم لوگ سن کے بہت پریشان بھی ہوئے, دکھ بھی ہوا. امیر شریعت صغیر احمد صاحب کے بارے میں پوری کرناٹکا جانتی ہے. میرے خیال سے 10 سال کی جب عمر کے اندر وہ سبیل الرشاد میں آ کے تعلیم پائے کے کم از کم 70-75 سال کی عمر 60-5 سال سبیل الرشاد میں رہ چکے. اور امیر شریعت کے ہم لوگ نزدیک سے دیکھے, اتنا سمپل آدمی میں کبھی میری زندگی کے اندر دیکھا نہیں. یعنی ایک عہدے پہ جو ایسے عہدے میں بیٹھے تو امیر شریعت مطلب کیا ہمارے سب کے رہبر کرناٹکا کے رہبر, وہ اس طریقے سے ایک معصومیت کے ساتھ ایک بچہ جیسا لگتا تھا ویسے رہتے تھے. کبھی ان کو تعصب ہندو مسلمان کچھ جیسا تعصب نہیں تھا. آج ان کی جو نیک کام جو کرے نیک آدمی کا اس کی ایک مثال کل آپ دیکھے ہوں گے. ان کے چہرے پہ ایسا نور تھا, میں دیکھ کے خود پریشان ہو گیا. کیوں جب بیمار تھے ان کی طبیعت جب ناسار تھی میں گھر پہ جا کے دیکھا تھا. جب ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کے چہرے پہ میں نصیر احمد صاحب ارشد رضویٰ صاحب پریشان ہو گئے. یعنی ایک نوجوان کا بچہ ہوتا نا 12-13 سال کا بچہ, ایک جلدی نہیں ہے. اس میں معلوم پڑتا ہے جو بھی نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے انتقال کے بعد. آج دیکھو مجمع دیکھو, آج جو جنازے کی نماز جو 10 بجے پڑھائی جا رہی ہے, آج اس کا مجمع دیکھیے اور کہ وہ کتنے نیک تھے. اللہ سے اتنا ہی دعا کر سکتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, قبر کے عذاب سے بچائے, جنت کے دروازے کو کھولا کر کے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے بھی گارڈ آف آنر کر رہے. ہمارے کرناٹکا کے چیف منسٹر بھی ابھی ایک 10 منٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں. ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಹಜರತ್ ಅಮೀರ್ ಶರೀಯತ್ ಮೌಲಾನಾ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ರಶಾದಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜನರ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೂ ಸಮೇತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಅದು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರವರು ಅದೊಂದು ಆಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭಾವ್ಯಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದು. ಹೌದು, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದು ಒಳಗಡೆ. आज पूरी रियासत कर्नाटक के लिए एक बहुत रंजो गम का दिन है. हजरत मौलाना सगीर अहमद खान रशीदी साहब जो रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत आज इस दार फानी को छोड़कर यहाँ से रहलत उनकी हो गई. और उनकी जो रहबरी रहनुमाई इस कौम के लिए इंसानियत के लिए थी, उससे हम सब महरूम हो गए. एक ऐसी शख्सियत
जो सबको साथ लेकर, सबको वक्त पड़ने पर नसीहत करते हुए, जब भी जरूरत पड़ी हमदर्दी जताते हुए, जब भी जरूरत पड़ी खड़े होकर आवाज उठाते हुए इस कौम को उनकी क़यादत की जरूरत और उनकी हयात में उन्होंने बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए। एक ऐसी शख्सियत जो नरम भी थी लेकिन वक्त पड़ने पर एक बुलंद आवाज भी थी। आज उनकी रहलत जो है हम सब के लिए एक बड़ा सदमा है। अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन फिर से उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उनके हजारों लाखों चाहने वाले पूरी दुनिया में अपनी क्या मैसेज है? देखिए, उनके चाहने वालों को, उनके खानदान कबीले को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब सब्र से इस सदमे से पार होना है। और ये सिर्फ उनके चंद करीबी लोगों के लिए दुख की बात नहीं है, पूरी कौम के लिए दुख की बात है। हम सब उनके साथ इनफरादी तौर पर जुड़े हुए थे और बहुत दिनों से आपकी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हम सब की फिक्र थी। ये आपकी शख्सियत दर्शाता है और मुझे आज यहाँ आकर सबके गम में शरीक होने का एक मौका मिला है। मैं यही दुआ करूँगा कि हम सबको एक होकर उनके उसूलों पर, उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलने पर हम सब गौर करें और आगे आने वाले दिनों में ऐसी शख्सियत कौन हो सकती है जो सबको साथ लेकर चले, उस पर गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अमानत अल्लाह को लौटाना ये दस्तूर अमल है। हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब, मेरे उनके ताल्लुकात लगभग 25 साल से ज़्यादा उनके साथ ना ये है। और मेरा पहला सफ़र उनके साथ 2001 में हज के सफ़र में हम साथ रहे, तो हज़रत अब उस्ताद भी रहे, बड़े ही नरम मिजाज के। आज इनके इंतकाल से एक आलिम दीन हमारे दरमियान से ना रुखसत हुए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो सिफत थी धीमे बात करना या फिर है ना हर चीज़ को है ना अपने एक तरीके से है ना उसे सुलझाने की कोशिश जो करने की उनमें ख़ास सिफत थी। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सदमा है। और उनके साथ जुड़े हुए ना सिर्फ ख़ानदान के, बट आज जिस मजमा उनके नमाज जनाजे में शिरकत था, इससे है ना ये मालूम होता है कि ना उनकी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कितनी थी। एक बड़ा सदमा है। अल्लाह से दुआ गो कि मरहूम को ना आला से आला मुकाम जन्नत फिरदौस में अता करे और उनके आल खानदान और है ना चाहने वालों को है ना सब्र जमील अता फरमाए। और साथ ही साथ आज सवेरे डॉक्टर मंसूर आलम साहब जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सेक्रेटरी रहे, उनका भी इंतकाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि नायब हस्तियाँ हैं जो हमारे से रुखसत हो रहे हैं। इनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत और है ना जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। चेयरमैन के तौर पर आज आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एक बड़े सदमे की बात है, दुख और दर्द की बात है, पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे मुल्क के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हजरत का सगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरों के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुकात बहुत अच्छा था, हजरत के साथ बहुत ज़माने तराज से क्या भी चीज़ में हजरत हमारे लिए दुआएं करते थे और ये एक कौम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह सुब्हान तआला इनके दर्जों को बुलंद फरमाए। आज बहुत गम का
ये है। अल्लाह इस गम को इनके दर्जों को बुलंद फरमाए। हमारे पिछले हमारे जब हज का फंक्शन आया था उसमें हजरत की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बुलाने के बावजूद हजरत आए थे और आके आखिर में बात नहीं कर सके, लेकिन दुआ की हजरत। तो कोई भी हज के मौके पे मैं कोई शरई मसला आ गया था हज के पिछले मरतबा, तो फौरी तौर पर हजरत के पास गया तो हजरत इमीडिएटली उसके लिए फतवा लिख के दिया। तो इसके जरिए से बहुत फायदा भी हुआ। वहाँ के हाजियों को भी मैं वो फतवा हजरत का भेजा था, तो उसके जरिए से हज करना भी बहुत आसान हुआ। तो हर मामले में भी कोई से भी शरई मसले में हजरत के साथ जो भी मशवरा करता था हजरत हमको अच्छा एक रास्ता बता के देते थे। आज हजरत हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला इनके दर्जों को बुलंद फरमाए। बहुत ही रंज की बात है, दुख की बात है कि एक ऐसे शख्सियत इस दुनिया से दारफानी से रुखसत हो गए, जिन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने खिदमत की। मौलाना मोहम्मद सगीर अहमद साहब जो यहाँ अमीर शरीयत की हैसियत से थे, और हम लोगों को इस बात का बहुत ही दुख है कि एक ऐसी शख्सियत को हम लोग खो चुके हैं आज, जिसका असर बहुत से लोगों पर पड़ा है। और मैं इनसे बहुत ही मुतासिर था, मिलता था बहुत, और जब भी दुआ की ज़रूरत होती थी हम उनके पास आते थे। और उतना सियासत में उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर जब भी सियासी तौर पे कोई ज़रूरत पड़ती थी उनकी, तो हम सब लोग आते थे, मिलते थे, उनसे राय मशवरा करते थे, और उनकी राय लेकर के ही सारे काम हुआ करते थे। बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का मुकाम अता फरमाए, और उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है वैसे ही ज़िंदगी गुजारने के लिए हम लोगों को भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रियासती हुकूमत का एजाज गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जा रहा है। देखिए, हजरत मौलाना सगीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो है इस मदरसे के मोहतमिम थे, अमीर शरीयत कर्नाटक थे, एक बहुत बड़े आलिम। आपके शागिर्द जो है इस वक्त सारी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं दीन की। आपकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत, आपके बाद जो है एक खला पैदा हो गया है इस वक्त। आप जैसा आलिम, आप जैसी शख्सियत मिलना भी मुश्किल है। आज न सिर्फ शहर बेंगलोर या दारुल सबील इरशाद बल्कि सारे कर्नाटक के मुसलमानों में एक गम का माहौल है। बस हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, उनके खानदान वालों को, इस मदरसे को, उम्मत को जो है उनका गार्ड ऑफ ऑनर जहाँ तक पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर हजरत अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया, दूसरा इनको दिया गया। ये हमारे लिए एक निहायत खुशी की बात है कि हमारे उलमा को भी जो है हुकूमत तस्लीम करती है। नाम के साथ मैं डॉक्टर मसूद अली खान, रहमान खान साहब का फर्जन, आज हजरत सगीर अहमद साहब बहुत निहायत ही दुख की बात है। सारे रियासत कर्नाटक और सारे मुल्क के लिए बहुत अफसोस की बात है कि आज हजरत हमारे साथ नहीं रहे। हजरत की जब बीमार थे हजरत मणिपाल में, तब मैं वहाँ पे गया था, हजरत को मिल को आए थे।
रहमान खान, हाँ वो खान साहब भी वालिद साहब भी गए थे और उनकी तबीयत नासाज होने की तरफ से वो आज शिरकत नहीं कर पाए। और हमारे भाई मंसूर अली खान जो हैं वो केरला में हैं और बड़े भाई भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसीलिए मैं आके फैमिली की तरफ से अल्लाह उन्हें आला से आला मुकाम दें जन्नत। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಓದಿ ಪಾಸಾಗಿರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಂಜಾನ್ಗೆ, ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋರು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದೋಗಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हजरत का था समझाने का, पढ़ाने का, तो यकीनन आज की नौजवान पीढ़ी के लिए ऐसे अखलाक का अपनाना बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों को कैसे इज्जत दें और कैसे उनका अदब व एहतराम करें। हज़रत रहिमहुल्लाह भी अपने उस्ताद हकीमुल मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा था। अब उनकी बड़ी इज्जत, उनका अदब व एहतराम, कभी उनके सामने ज़ोर से न बोलना और कभी सामने न बैठना, बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम किया करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसी अदब की वजह से आपको दारुल उलूम सबिलुर रशाद का मुहतमिम भी बनाया और साथ ही साथ अमीर शरीयत कर्नाटक भी अल्लाह ने आप जिम्मेदारी दी और मुख्तसर सी अलालत के बाद वो दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह हजरत की भरपूर मग़फ़िरत फरमाए। चूँकि मैं भी साथ रहता था, आप साथ रहते थे और आप ज़ाती तौर पर भी आपके लिए बड़ा सदमा हुआ। यकीनन ये मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात है। यूँ समझिए कि हम यतीम हो गए हैं और हमारे बाप का इस वक्त दुनिया से पर्दा कर जाना, ऐसा एहसास हो रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। के साथ रहते थे? जी हाँ, अक्सर व बेशतर चूँकि जब हजरत अमीर शरीयत बने 2019 का वो सन था, तो उस वक्त कोरोना का मसला आ गया, तो मुख्तलिफ फैसले लेने की ज़रूरत थी। तो तमाम जमातें, तमाम तंजीमें और हमारे सियासी कायदीन सब मिलकर तमाम रियासत के लिए बहुत अच्छे मुफीद फैसले लिए और अल्लाह का शुक्र है कि कौम में एक इत्तेहाद पैदा हुआ, इत्तिफाक पैदा हुआ। इसी में हमारी कामयाबी है। बस हम यही चाहते हैं कि जैसा भी मौका आए हम आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहें, इत्तिफाक से काम करें। मुख्तसर पैगाम आज के मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत सुवम हज़रत मौलाना समीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात न सिर्फ एक ख़ानदान और इलाके के लिए नुकसान का ज़रिया है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए ये एक अजीम खसारा है, नुकसान है। और जिस तरीक़ पर दूरअंदेशी से आप पूरी मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई फरमाया करते थे, वो अजीम तरीन साया जो है वो सरों से उठा है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, इसको कबूल करना है, दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दर्जात को बुलंद फरमाए, खानदान को, अहले खाना को, पूरी मिल्लत इस्लामिया आज के मौके पर बेंगलुरु आप आए हैं, देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत अब नहीं रहे हैं,
ये अभी मैं जो आया हूँ वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की जानिब से वहाँ के मौजूदा अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने इमारत शरिया के एक वक्त को यहाँ भेजा है और हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब जो आप रहमहुल्लाह हो गए, इनकी खिदमत बहुत तवील हैं, इन हज़ारों की तादाद में इनके शागिर्द हैं। आज पूरा मुल्क इनके इंतकाल पर सोगवार है। इनकी खिदमत से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी फैज़याब हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। दारुल उलूम सबीलुर रशाद जो एक अजीम दरसगाह है, दीनी दरसगाह है, यहाँ जो एक खला पैदा हुआ है, अल्लाह उनका नेमत बदल अता फरमाए। आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद रहमान कासमी, नाज़िम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ना सिर्फ दारुल उलूम सबीलुर रशाद के लिए, ना सिर्फ रशादी उलमा के लिए, बल्कि पूरी मिल्लत के लिए, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है कि हज़रत अल्लामा सगीर अहमद ख़ान साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह अब हमारे दरमियान नहीं रहे। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की एक लंबी तवील ज़िंदगी का एक हिस्सा आपने हमो पेश 50 साल दीनी व इल्मी खिदमात करते हुए गुजारे हैं और इस मुद्दत में आपने हज़ारों अपने ऐसे शागिर्दों को, उलमा को तैयार किया जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, हिस्सों में दीनी व इल्मी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही अमीर शरीयत के बावक़ार ओहदे पर सरफराज हुए, फाइज हुए, रियासत में बेशुमार चैलेंजेस सामने आए, बेशुमार मसाइल पैदा हो गए, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, चाहे वो औक़ाफ़ की अमलाक का मामला हो, और इसी तरीके से लॉकडाउन में कोविड के मौके पर जदीद मसाइल के मामलात हों। ये हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की सलाहियतों का एक नतीजा है कि आपने तमाम सियासी क़ाइदीन को और तमाम मसालिक के मशारिब के उलमाए किराम को साथ लेकर अपनी खुदादाद सलाहियतों को सामने रखते हुए बड़ी हिकमत के साथ आपने हर मसले को सुलझाया। हर मसले में आपने एक अच्छा फ़ैसला लेकर मिल्लत का और रियासत कर्नाटक का ख़ास तौर से आपने नाम ऊंचा किया। अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ी खिदमत ली हैं। यकीनन आज हम सब यतीमी महसूस कर रहे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हम सब के हक़ में बड़े मुशफ़िक़ मेहरबान बाप ही नहीं बल्कि तलबाए दारुल उलूम सबीलुर रशाद आपको माँ की हैसियत देते हैं, माँ की तरह समझते हैं। और आपका वही मुशफ़िक़ाना ताल्लुक़ तलबा से भी था और हम खुद्दाम से भी था। आज हम बड़े मग़मूम हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत जलीला को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हम खुद मग़मूम हैं और निहायत रंजीदा हैं। इस मौके पर भी हम ख़ास तौर से हज़रत के साहिबजादगान को और उनके रिश्तेदारों को हम तसल्ली देते हुए हम उनके हक़ में दुआ करेंगे, अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता करे और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम सबको नेमल बदल अता फरमाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी का आखिरी सफ़र। नमाज जनाजा के बाद अब आपको तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। दारुल उलूम सबीलुर रशाद के इहाते में ही आपकी तदफीन अमल में आ रही है। एक ठांटे हुआ मारता हुआ समंदर ने आज आपको अलविदा कहा। कल 12 जनवरी सुबह 6 बजे तकरीबन आपका इंतकाल हुआ और आज 13 जनवरी बरोज़ मंगल आपकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आ हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी को अलविदा किया है।
हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजरत के आखिरी सफ़र। न सिर्फ बेंगलोर बल्कि रियासत भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे कर्नाटक से लोग आए हुए हैं, पड़ोसी रियासत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपके आखिरी सफ़र में शामिल हुए हैं।